Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 22nd of August 2023. To all the new students, I would like to inform that this is our daily session in which we decode the important editorial sections from the Hindu newspaper. From today's discussion, we would be covering two important topics such as the drilling in the North Sea and the production linked incentive scheme, that is the PLI scheme. So before we move to our main discussion, I would like to request all of you to please do subscribe our channel IAS Cafe. If you're really liking our video, please do like and share to as much students as possible so that we could reach to them, we could help you all in your journey towards UPS. Now, coming back to the main discussion, that is the drilling in the North Sea, history and environmental concerns. आप सबनी ने अगर ये मैप जो है इसको नोटिस किया होगा तो ये आपके पास जो नॉर्दर्न सी वाला जो एरिया है इसके अंदर जब आप रिसोर्स को निकालने के लिए लाइक जो रिसोर्सेस है यहाँ पे उनको जब आप बाहर निकालने की जो ड्रिलिंग करते हो यहाँ पे चाहे वो रिसर्च हो या एक्सप्लोरेशन हो राइट द ड्रिलिंग एक्टिविटी उसको लेके यहाँ पे डिस्कशन दे रखा है कि इसका हिस्ट्री क्या है व्हेन डिड इट स्टार्ट how it is actually impacting, and what are the environmental concerns regarding it. Why it is, the debate and discussion going on this topic. Why it is so much in the news. What are the concerns related to it? We are going to discuss in this editorial section. Now, coming back to it, the first that is the central idea. Recent endorsement by the UK Prime Minister of the plans for the fresh fossil fuel drilling of the British coast has sparked a debate among the environmental experts. So the first thing is why it is in the news. If we talk about the Northern Sea, in this sea, the Prime Minister of the UK government has recently endorsed the fresh fossil fuel plan for the drilling. यानी यहां से आप ड्रिल करके जो फॉसिल फ्यूल का जो एक्सप्लोरेशन है उसके प्लान को लेके रिसेंटली यहाँ पे एंडोर्समेंट दिया गया है बाय द यूके प्राइम मिनिस्टर और यहाँ से सीधा एक डिबेट चालू हो जाता है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट को लेके दैट इज इट सूटेबल फॉर द एनवायरमेंट will it be contributing to the climate change जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करें क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस कंसर्न इस एक तरफ क्लाइमेट चेंज का हम लोग इशू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को लेके नॉर्दर्न सी में जो ड्रिलिंग है उसके लिए एंडोर्समेंट दिया जा रहा है तो दैट इज द रीजन यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में So, amidst the global concerns about the climate change, the decision raises the questions about the country's commitment to the sustainability and its impact on the climate goal. तो ग्लोबल लेवल पे कंसर्न तो है ही क्लाइमेट चेंज को लेके लेकिन इसी के साथ में जो यूके है उसका क्लाइमेट चेंज को लेके अपना जो कमिटमेंट है आप सबने बहुत अच्छे से अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए दैट रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर so it was a time of 1992 एक अर्थ समिट हुई थी ओके इन ब्राजील रियो डी जेनेरियो so as a part of this summit there were three important conventions were signed the number one was about the UNFCCC. It stands for United Nations Framework Convention for the Climate Change. The second was the UNCCD. Again, the United Nations Convention to combat the desertification. And then the CBD, that is the Convention on the Biological Diversity. Okay? So our focus is on the UNFCCC. The full form would be
United Nation Framework Convention on the Climate Change. Okay, so this is about the UNFCCC United Nation Framework Convention on the Climate Change. और इसी के अंदर आप सभी को याद होगा एक पेरिस अग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जहां पे हमने जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक लिमिट जो है सेट करी। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे ग्लोबल कंसर्न तो है, बट उसी के चलते हुए जो यूनाइटेड किंगडम है उसका जो कमिटमेंट है क्लाइमेट गोल्स को लेके, उससे भी बहुत सवाल उठते हैं। अब नॉर्थ सी ड्रिलिंग जो है उसका पूरा एक इवोल्यूशन को समझते हैं, कब स्टार्ट हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़ा है। अगर ओरिजिन और जो उसको लेके जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो लेजिस्लेशन है, उसके बारे में बात करते हैं तो 1958 के अंदर, दैट मींस दिस वाज द रियल सिनेरियो 1992, उससे भी पहले की बात है 1958 के अंदर जिनेवा कन्वेंशन हुआ था। वेयर इज जिनेवा? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन द लोकेशन ऑफ द जिनेवा। दैट 1958 के अंदर ये जो जिनेवा कन्वेंशन है यहाँ पे हुआ, इसके अंदर नॉर्थ सी ड्रिलिंग जो है उसका आपको एक एविडेंस जो है देखने के लिए मिलता है। कन्वेंशन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ which states for set the stage for exploration in the region। तो इस जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो एरिया होता है वहां पे एक स्टेज दिया गया कि ओके इस रीजन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ से आपके पास एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट जो है वो आ जाता है। दैट यूके पार्लियामेंट जो है उन्होंने कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट जो है वो बनाया 1964 में, और इस एक्ट के तहत कंट्री का जुरिस्डिक्शन होता है कि यहाँ पे ऑयल और जो गैस रिजर्व है सी बेड के नीचे वाले एरिया में, वहां पे एक्सप्लोरेशन जो है ये कर सकते हैं। Now, what are the milestones and concerns related to the drilling? Early exploration and the challenges. The British Petroleum जो है was granted the first exploration license in 1964, leading to the natural gas discovery the following year. फिर आता है आपके पास 40s field discovery। इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ब्रेक थ्रू था रिगार्डिंग द कमर्शियल ऑयल डिस्कवरी इन द 40s field in 1970 marked a significant milestone, expanding the operations and the safety revamp. The following years witnessed increased exploration activities and installation of the oil platform. The Piper Alpha disaster 1988, it also prompted the crucial safety reforms. तो यहाँ पे फिर रैशनल क्या है, कंसर्न क्या है? देखो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे पोजीशन है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की अगर बात करूं, the government justified the move as a strategy to enhance the Britain's energy independence. Environmental alarm. However, environmental expert expresses apprehension, especially given the global push towards the averting irreversible climate change. अब एक हम पूरा लाइसेंसिंग को लेकर जो अथॉरिटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दैट द नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी एंड द ऑफशोर लाइसेंसिंग जो है ये क्या है, इसका जो रोल है वो क्या है, राइट? तो व्हेन आई टॉक अबाउट द नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी बॉडी है जो ऑयल, गैस या फिर जो कार्बन सॉल्ट्स के जो सेक्टर्स है उसको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ऑफशोर लाइसेंसिंग राउंड की अगर बात करें तो ये जो एनटीएसए है यानी कि द नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी है, ये आज की डेट में दैट इज करेंटली कंडक्टिंग द 33rd ऑफशोर ऑयल एंड द गैस लाइसेंसिंग राउंड, aiming to award more than 100 licenses. Timing and award, the first licenses are expected to be granted in the autumn, furthering the expansion of the drilling operations. Here, now, shaping the geopolitical energy dependence. देखो फ्यूल जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपटीशन का जियोपॉलिटिक्स पे। Everyone needs energy, everyone needs fuel. तो इस एनर्जी का जो सिक्योरिटी है उसको लेके जो कंसर्न्स है वहां पे उसके लेके यहाँ पे बात हो रही है। दैट एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, प्राइम मिनिस्टर
emphasized the necessity of domestic oil and gas sources even as the country aims to react the net zero emission by 2050. Strategic implications की बात करें, the decision is portrayed as an effort to reduce the reliance on the oil and gas import, which could originate from potentially unfavorable sources. Ecological concerns and the climate impact. एनवायरमेंट पे तो बहुत बुरा इफेक्ट है, क्योंकि इससे आपके पास जो पानी यानी जो सी में जो मरीन इकोसिस्टम होता है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट जो हेल्थ है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओशन वार्मिंग एज वेल। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू जिसका हम पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। एंड वहीं से रिलेटेड है ओशन वार्मिंग, जब सी लेवल जो है उसका भी लेवल राइज होता है, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी उनकी लाइफ को खतरा होता है, ओशन वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल। So what are the carbon pollution impact? Carbon pollution settling into ocean contributes to the acidification, endangering the coral reef and the shellfish. Now, evaluating the UK's climate commitments, कि UK के जो climate commitment है उसको evaluate करते हैं। देखो climate change का जो committee है उसमें इन्होंने point out किया that deficiencies in the UK's preparation for climate change under the National Adaptation Program. यूके का एक नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने कुछ डेटा दिया कि हम यहाँ तक इतने टाइम तक ये कर देंगे। उसमें जो डेफिशिएंसीज है वो देखने के लिए मिल रही है। एडेप्टेशन जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी ये जो क्लाइमेट चेंज कमेटी का जो असेसमेंट है उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि यहाँ पे जो एडेप्टेशन मेजर्स का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। पेरिस एग्रीमेंट के साथ ये बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। जो पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है उसको ये फुलफिल नहीं करते हैं। जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस उसको भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा इनकी जो लिमिट्स है इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? The UK's endorsement of the offshore drilling reflects a complex balancing act between the energy security, economic considerations, and environmental stewardships. As the world grapples with the imperative of combating the climate change, the decisions made today hold the potential to shape the course of a sustainable future. Here, now coming to the second topic, it is about the production linked incentive scheme, that is the PLI scheme. So it is about the production linked incentive scheme or the PLI scheme. देखो करीबन 5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी विच इज शॉर्टली नोन एज द PLI scheme, right? That is the production linked incentive scheme. What was the objective of this? Encouraging the modern companies, whether the domestic or the foreign, to manufacture the products within the India. Under the scheme, the companies receive financial incentives from the government. देखो इस स्कीम के अंदर क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कोई भी कंपनी अगर वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है गुड्स का कंट्री के अंदर ही कर रही है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही करवा रही है, तो उसको सरकार क्या करता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है। So ultimately it will boost Make in India. The focus of this scheme has particularly been on the electronics manufacturing sector. अब ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है इसको लेके कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी आए थे। रघुराम राजन, ये हमारे बैंकिंग से रिलेटेड है, सबको इनका नाम अच्छे से पता होना चाहिए, और जो हमारे स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला दैट इम्पैक्ट ऑफ द PLI स्कीम जो उसको लेके कुछ चीजें इन्होंने बताई। रघुराम राजन जी बोलते हैं while the import of fully assembled mobile phone have decreased, कि जिस तरह से पूरी तरह से जो असेंबल्ड फोन होते हैं सीधा बाहर से जो इंपोर्ट आप कर रहे हो वो उसका कम हुआ है, ठीक है, जबकि आप उन फोन का मोबाइल फोन की जो सेपरेट कंपोनेंट्स की अगर इंपोर्ट की बात करते हैं तो वो बड़े हैं। आई रिपीट, इनका क्या कहना है कि कंप्लीट पूरा एक रेडी स्मार्टफोन बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी तादाद कम हुई है,
और जो स्मार्टफोन के जो कंपोनेंट्स है उनको आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, वो बढ़ रहा है। तो कुल मिला के आज के पेपर में जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे, और उसी से रिलेटेड ये पीएलआई स्कीम है। तो ये कंसर्न रेज करता है अबाउट द एक्सटेंट टू विच द पीएलआई स्कीम हैज ट्रूली लेड टू द डेवलपमेंट of self-sufficient electronics manufacturing ecosystem in India, as the increase in the component import might indicate a reliance on the foreign-made companies. तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि ये जो पीएलआई स्कीम है इसके थ्रू हम कंपनीज को इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि जितने भी कंपोनेंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग है गुड्स की, वो इंडिया के अंदर करती है। लेकिन इनका कहना ये है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 21-23 तक की बात करें तो कंपोनेंट्स का इंपोर्ट बढ़ा है, यानी ये शो कर रहा है कि अभी भी ये जो पीएलआई स्कीम है इट इज नॉट सक्सेसफुल। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं रघुराम राजन जी के द्वारा कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है। Rajan ji contends that while the PLI scheme has led to increase in the mobile phone export, the focus has primarily been on the low-level assembly work. This means while the final product might be labeled as made in India, but उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है अभी भी इंपोर्ट कर रहा है। तो अभी रघुराजन जी जो है वो बोल रहे हैं कि देखो आप जो फाइनल प्रोडक्ट जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका आप मेक इन इंडिया का टैग तो लगा रहे हो कि इंडिया में बना है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया से बाहर भेज रहे हो बना करके, उसके मोस्टली कंपोर्ट आप बाहर से ही लेके आ रहे हो, तब उसको बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट की जो खरीदारी है उसका जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसमें अभी भी हम बाहर की कंट्रीज में डिपेंडेंट है। फिर से समझेंगे मतलब क्या हुआ। हम बोल रहे कि ये इंडिया है, इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए हम बोल रहे कि हमने बहुत सारे जो सेल फोन्स है वो इंडिया में ही बना दिए हैं, ठीक है, दीज आर द सेल फोन्स जो हमने इंडिया में बना दिए हैं और इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में। मान लीजिए हम यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए। लेकिन इनका कहना यह है कि इन फोन को बनाने के लिए जो कंपोनेंट की जरूरत होती है वो कंपोनेंट आप एक्सपोर्ट करके ले रहे हो, तो क्या मतलब। He specifically points out that import of mobile phone components such as the display screen, the batteries, the cameras, the printed circuit boards वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए एक वैल्यू एडिशन बहुत कम हो रहा है। इंडिया में जो जॉब क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हो उस पर अभी भी सवाल उठता है, जो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस पर सवाल उठता है। कुल मिला के यहाँ पे इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो पीएलआई की जो बेनिफिशरीज है उसका जो परसेंटेज है उस पर डाउट हो रहा है। आप वैल्यू एडिशन जो है वो यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। So this is the point with respect to the manufacturing of smartphones in India. Okay, so this is it for today. Thank you so much. Please do subscribe our channel, like and share.